आज हम जो पोएम करने जा रहे हैं इट इज़ स्नोड्रॉप by Edward James Hughes or Ted Hughes. We'll discuss especially the poetic devices used in this particular poem. Okay, so first of all, we'll talk about the theme of this poem, Snowdrop. If you look at the title, Snowdrop is a flower actually. एक फ्लावर होता है, विंटर्स में स्पेशली होता है, तो एक फ्लावर का नाम है स्नोड्रॉप. ओके, देन मूविंग टू द पोएम. If we discuss the theme of the poem, the theme of the poem is, the harshness of nature and survival in adversity. हम ये कह सकते हैं. Okay, because the poet presents the very harshness of nature. He presents the cruel aspect of nature. He presents the nature's brutal side. Okay, so one of the themes of the poem is the harshness of nature and survival in adversity. Okay, then we can also say another theme is the nature's on one side he discusses the nature's brutal side, and at the same time he discusses its determination to keep going. Nature's determination to keep going, how nature itself survives, how it endures. Okay, so these are the themes of this poem. And overall, as I said, the theme of this poem is to show harshness of nature and how to survive in adversity. Okay, and the nature presented in this poem is very tough, very cruel, very harsh. Okay, especially the winters, which brings death, which brings only death to all the creatures. Okay, which limits or which reduces the horizon of many creatures which are not able to move during winters. Okay, and the difficulty, the problems winter creates is emphasized here in this poem. But at the same time, when life becomes very tough in winters, and at the same time he highlights that how nature has that power to keep going, how nature attains its goal. Okay, so it was all about the theme of the poem. And moving to the poetic devices, first of all, we're going to discuss the metaphor in this poem. Okay, as the poem goes, now is the globe shrunk tight. I will explain a bit first, then I will discuss the poetic devices. Now is the globe shrunk tight. The globe is shrunk, the world is shrunk very tight. Round the Moses dull wintering heart. ग्लोब जो है यहाँ पर कंपेयर किया गया है ग्लोब को इसके साथ, snowdrop के साथ, metaphorically compared to globe. The snowdrop is metaphorically compared to globe because of its roundness, one thing. And if we say the globe is the world, अगर हम कहें कि ग्लोब दुनिया है, so it is shrunk tight during winters. Why? Round the Moses dull wintering heart. Most चूहा जो है, the winters, the cold, it creates mouse. Mouse is not able to move. Okay, or its mouse's heart is not able to function properly due to the harsh cold, due to the harsh winters. Mouse is not able to move. ओके, ये हिल भी नहीं सकता है अपनी जगह से, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा दुनिया जो है बिल्कुल शंक हो चुकी है. यानी कि इस विंटर्स ने, इस कोल्ड ने जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया है. ठीक है, उनकी जो मोबिलिटी है, निकलने की, घूमने की, कुछ एक्टिविटी करने की, वो जो सलाहियत है उनसे छीन ली है. ओके, इतनी ज़्यादा ठंड. वीजल एंड क्रो. वीजल इज़ एन एनिमल एंड क्रो वी नो द बर्ड. तो इन जो एनिमल्स हैं, वीजल एंड क्रो, एज इफ मोल्डेड इन ब्रॉस. तो इनको डिस्क्राइब करता है कि वीजल एंड क्रो ऐसा लगता है कि जैसे मेटल के, जैसे पीतल के,
ठीक है, जैसे पीतल का कोई बर्तन है, पीतल का कोई भी चीज है, तो इस मेटल की तरह वो भी हो गए हैं, बिल्कुल सख्त, बिल्कुल स्टिफ। ठीक है, उनकी हालत ऐसी हो गई है सर्दी से जैसे कि ऐसा लगता है कि पीतल हो। ठीक है, क्रो जो कहीं भी जा सकता है, वीजल जो एक्टिव रहता है, ठीक है, अपने प्री को, अपने शिकार को किसी भी तरह से झपट लेता है, लेकिन विंटर्स की वजह से बिल्कुल एज मोल्डेड इन ब्रास, ऐसा लगता है कि ये मेटल हो चुके हैं, ये पीतल के हो चुके हैं, जो मूव नहीं कर सकते हैं। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस, दे कैन नॉट मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस। ओके, द विंटर्स नेचर इज आप कह सकते हैं कि उसको आफ्टर डार्कनेस, एक डार्कनेस के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, दे कैन नॉट मूव, अगर वो दिन में कहीं बाहर जाना भी चाहें तो वो दिन भी उनके लिए वो रात सी साबित होती है, विच इज full of cold, which is full of death. They cannot move anywhere, not in their right minds. They are not in their right minds. जो भी animals हैं, जो भी creatures हैं, they are not in their right minds. They are not able to do anything. ठीक है, वो भी बिल्कुल अपनी हालत में नहीं है। They are उनके, आप ये कह सकते हैं कि mentally they have become sick. बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। And then he says, with the other deaths, she too pursues her ends. यहाँ पर contrast है, with the other deaths, the deaths with which winter brings. सर्दियों की वजह से, इस नेचर की वजह से, जो हाल ये नेचर जो विंटर्स में होता है बाकी एनिमल्स का, वो तो होता है। This is one side of the nature. Okay, but she means here especially snowdrop. She too pursues her end. या snowdrop या nature itself. Okay, she too pursues her ends. लेकिन snowdrop जो है, nature जो है, it pursues her ends. जिसका गोल होता है वो उसको हासिल करके रहता है, जो snowdrop है या nature आप कह सकते हैं। वो गोल कौन सा है? Brutal as a star of this month. वो गोल कौन सा है कि ये जो फ्लावर होता है स्नोड्रॉप, ये इवन विंटर्स में चाहे स्नो बर्फ पड़ी हो, जितनी भी हो, फिर भी ये लेकिन खिल लेता है, फिर भी ये ब्लूम कर लेता है, अपना गोल अचीव कर लेता है, इतनी सख्ती के बावजूद। ठीक है, इतनी ठंड के बावजूद। ब्रूटल एज अ स्टार्स ऑफ दिस मंथ। ब्रूटल यहां पर कहा गया है दिस नेचर या दिस स्नोड्रॉप इज ऑल्सो ब्रूटल एज अ स्टार्स ऑफ दिस मंथ। इन व्हाट सेंस, किस सेंस में कहा गया? स्टार्स, विंटर्स में जो स्टार्स हैं, इट कैन नॉट इफेक्ट, विंटर्स कैन नॉट इफेक्ट द शाइनिंग ऑफ द स्टार्स। इवन स्टार्स भी, चाहे विंटर्स हो, जितनी ठंड हो, विंटर्स में भी स्टार्स जो है वो चमकते हैं। ठीक है, उनकी शाइनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो सिमिलरली ये जो स्नोड्रॉप है, इट ऑल्सो फाइंड्स इट्स वे टू ग्रो। ठीक है, ये बर्फ से निकल कर आता है और ग्रो करता है, ब्लूम करता है। ठीक है, जिस तरह से स्टार्स इवन इन द नाइट ऑफ द विंटर्स दे शाइन, nothing can stop them from shining. Similarly, snowdrop also find its way to grow, find its way to bloom. Then her pale head heavy as metal. Her pale head heavy as metal. snowdrop की बात हो रही है। her pale head heavy as metal. उसका जो head है राउंड होता है, heavy as metal, metal की तरह heavy। ठीक है, her pale head, एक तरफ से तो वो बिल्कुल ठंड है, ठंड का असर पड़ता है, बट इट्स हेड हैवी एज मेटल। उसका हेड, उसका जो क्राउन है या उसका जो अपर पार्ट है, इट इज हैवी एज मेटल, बिल्कुल मेटल की तरह स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यू कैन नॉट ब्रेक मेटल, आप मेटल को ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह से मेटल के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। जिस तरह से मेटल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो स्नो जो है, विंटर्स जो है, स्नो ड्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा एक यहां पर है कंट्रास्ट है। ठीक है, पोएट ने कंट्रास्ट यूज किया है। व्हाट? लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। विंटर्स ब्रिंग्स डेथ टू एवरीथिंग ऑलमोस्ट। ठीक है, नथिंग इज, नो एनिमल इज एबल टू मूव, नो एनिमल इज एबल टू मूव। ठीक है, वो पीतल ऐसा लगता है कि मेटल से हो गए हैं, पीतल जैसे हो गए हैं, नॉट एबल टू मूव। बट एट द सेम टाइम he says snowdrop जो है, flower जो है, it blooms even during those harsh winters, okay, harsh cold, it blooms. So life and death, ठीक है, इनको इस चीज का कंट्रास्ट है। और एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्नोड्रॉप के पास वो स्ट्रेंथ होती है, यू शुड हैव स्ट्रेंथ ड्यूरिंग एडवर्सिटी, वो ये कहना चाहता है।
एक तरफ से तो सारे एनिमल्स वीक पड़ चुके हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ नेचर, बिकॉज ऑफ द हार्शनेस, दिस क्रूअलिटी ऑफ नेचर. बट एट द सेम टाइम स्नोड्रॉप जो है, it shows its strength by coming out of the layer of snow and it blooms. So it shows a strength. Oh, how to survive in adversity. It is this thing. Then there is endurance and surrender also. Okay, snowdrop endures everything to bloom, to grow, and at the same time all the other animals, they surrender in front of winters, in front of nature. तो ये contrast उसने use किया. Then कुछ पोइटिक डिवाइसेस जो बाकी हम अगर हम इनको डिस्कस करेंगे. नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट. अगर आप इस बुक की वोकैबुलरी में भी, ग्लॉसरी में भी देखेंगे, ग्लोब हैज बीन स्नोड्रॉप हैज बीन मेटाफोरिकली कॉल्ड ग्लोब. ठीक है, स्नोड्रॉप को ग्लोब के साथ कंपेयर किया गया है. व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स राउंडनेस. ग्लोब इज राउंड, स्नोड्रॉप इज ऑल्सो राउंड. वन थिंग. ओके, सो एक मेटाफर यहां पर यूज किया गया है. सो ग्लोब श्रंक एंड टाइट. Okay, and similarly snowdrop is also shrunk and tied, but it finds its way to bloom, it finds its way to grow. Okay, then another metaphor used in this poem is what? Snowdrop जो है, आप अगर यहाँ पर कहें, यहाँ पर जैसे अभी आपने पढ़ा, she too pursues her ends. She too. Snowdrop has been compared with a warrior या with a woman. स्नोड्रॉप को उसके साथ कंपेयर किया गया है. वाई वॉरियर? बिकॉज वॉरियर जो होता है, काफ़ी ज़्यादा अगर एक फौजी जो है लड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं, उसको गोली भी खानी पड़ती है, बट स्टिल अ वॉरियर शोज स्ट्रेंथ, शोज विल, शोज एंड्योरेंस, इट शोज इट्स विल टू सर्वाइव इन एडवर्सिटी, इट्स डिटर्मिनेशन टू सर्वाइव इवन इन टफ टाइम्स. तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर स्नोड्रॉप को उस लेडी के साथ, या लेडी के साथ अगर हम कहेंगे वुमेन के साथ कंपेयर किया गया है. क्यों? बिकॉज वुमेन ऑल्सो फेसेस सो मेनी डिफिकल्टीज, सो मेनी हार्डशिप्स इन लाइफ, बट शी ट्रम्प्स, शी गेट्स ओवर ऑल ऑफ दैम. she comes out as a triumphant. ठीक है, she comes out as a victorious. ठीक है, जिस तरह से वॉरियर जो होता है, बहुत ज्यादा मुश्किलों के बावजूद भी वो जंग से निकल कर आता है. ही डजंट सरेंडर. सो यहां पर कहा गया है स्नोड्रॉप के बारे में, शी टू परसीव्स हर एंड्स. स्नोड्रॉप जो है वो अपने गोल तक पहुंच जाता है. जिस तरह से वॉरियर अपने गोल तक पहुंचता है, चाहे उसका गोल रिट्रीट हो, वापस अपने कैंप में पहुंचना हो, या दुश्मन को हराना हो, जख्मों के बावजूद भी, ठीक है, हार्डशिप्स के बावजूद भी, तो लेकिन वो चीज करता है, वो अपना गोल अचीव कर लेता है. शी टू परसीव्स हर एंड्स. स्नोड्रॉप जो है, इट ऑल्सो परसीव्स इट्स एंड्स, इट्स ऑल्सो गेट्स इट्स गोल. कौन सा गोल? किस मंजिल पर पहुंचता है? टू ब्लूम, कि वो उस स्नो उस बर्फ से बाहर निकलकर, उसकी लेयर को तोड़कर ये खिल जाता है. इट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ एडवर्सिटी, इट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द क्रूअल नेचर ऑफ विंटर्स. ओके, तो आप कह सकते हैं कि स्नोड्रॉप को वुमेन के साथ कंपेयर किया गया है, स्नोड्रॉप को वॉरियर के साथ कंपेयर किया गया है. ओके, इट वाज मेटाफर. ओके, देन वी आर गोना डिस्कस नंबर 3. इफ यू से, यहीं पर हम डिस्कस करेंगे सिमिली. ओके, सिमिली भी यहां पर यूज हुआ है. जैसे यहां पर कहा गया वीजल एंड क्रो जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एज इफ मोल्डेड इन ब्रास. वीजल एंड क्रो को कंपेयर किया गया है एज वर्ड लगाकर ब्रास के साथ, पीतल के साथ, मोल्डेड पीतल के साथ. ठीक है, मोल्डेड पीतल के साथ. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मूव. ठीक है, वो भी बिल्कुल शंक हैं, वो भी बिल्कुल टाइट हैं, वो भी बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं. ऐसा लगता है जैसे स्टैच्यूज हैं ब्रास के. ठीक है, ऐसा लगता है कि वो स्टैच्यूज हैं ब्रास के. जिस तरह से ब्रास के स्टैच्यूज कोई बनाता है, इसी तरह से लगता है कि वीजल एंड क्रो भी बिल्कुल ब्रास के स्टैच्यूज के साथ कंपेयर किया गया है एज वर्ड लगाकर. ओके, और मैंने डिस्कस किया है सिमिली और मेटाफर क्या होता है. सिमिली इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है एज और लाइक वर्ड लगाकर, एंड मेटाफर इज डायरेक्ट कंपैरिजन. ओके, तो एक सिमिली हमारे पास यहां पर है. ठीक है, वीजल एंड क्रो को कंपेयर किया गया है ब्रास के साथ, बिकॉज द स्टैच्यूज ऑफ ब्रास कैन नॉट मूव. जिस तरह से वो मूव नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से वीजल और क्रो जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं.
देन अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे, फिर सिमिली की तरफ आ जाएंगे, एक और सिमिली की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर सिमिली यूज हुई है, स्नोड्रॉप शी टू परस्यूज हर एंड्स ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। यहाँ पर स्नोड्रॉप को कंपेयर किया गया है एज द स्टार्स के साथ, जिस तरह से स्टार्स भी इन स्पाइट ऑफ द हार्श विंटर्स, इन स्पाइट ऑफ द डार्कनेस, दे शाइन, ठीक है, वो शाइन करते हैं। इसी तरह से स्नोड्रॉप जो है वो भी क्या करते हैं, दे ब्लूम इन स्पाइट ऑफ द हार्श विंटर्स, इन स्पाइट ऑफ द स्नो, ठीक है, दे ब्रेक द लेयर ऑफ स्नो, उसको तोड़कर वो बाहर निकल के आते हैं और खिलते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट अगेन कंपेयर्ड विद द स्टार्स शाइनिंग ऑफ द सॉरी। तो यहां पर कहा गया है ब्रूटल, शी टू, ये जो ब्रूटल है, कौन ब्रूटल है, स्नोड्रॉप इज ब्रूटल, शी टू परस्यूज हर एंड्स ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। ब्रूटल किस लिए कहा गया है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ ब्रूटल, नेचर जो है इट इज ब्रूटल इन इट्स ओन सेंस, ठीक है। ये भी बहुत बुरी तरह से, ये भी बहुत उस नेचर की क्रुअल्टी के सामने बिल्कुल डट के खड़ा रहता है, एंड इट कम्स आउट देयर, ठीक है। इसी तरह से स्टार्स भी, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टार्स, जिस तरह से स्टार्स की स्ट्रेंथ को यहाँ शो किया गया है, इसी तरह से है स्नोड्रॉप की स्ट्रेंथ को भी यहाँ शो किया गया है। तो स्नोड्रॉप हैज बीन कंपेयर्ड विद स्टार्स which shine in the cold winters, cold nights. Okay, similarly, snowdrop also comes out of the layer of snow and it blooms. Okay, तो as word लगाकर इसको कंपेयर किया गया है. So it is a simile. Again, her pale head heavy as metal. Her pale head, snowdrop's head, उसका जो crown part होता है, heavy as metal. ओके तो अगर आप यहां पर ये कहें कि उसको मेटल के साथ कंपेयर किया गया है स्नोड्रॉप को बिकॉज ऑफ इट्स हैवीनेस, ठीक है, वो हैवीनेस, वो झुका हुआ होता है लेकिन फिर भी निकलता है बाहर, फिर भी टूटता नहीं है, फिर भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है, अपनी विल दिखाता है, अपनी एंड्योरेंस दिखाता है, ठीक है। जैसे आप एक मेटल को ब्रेक नहीं कर सकते हो, इसी तरह से आप स्नोड्रॉप को विंटर्स में वो ब्रेक नहीं कर पाते हैं। हर पेल हेड हैवी एज मेटल, वो भी हैवी, जिस तरह से एक मेटल हैवी होता है, इसी तरह से उसका सर, उसका क्राउन पार्ट जो है वो हैवी होता है बिकॉज ऑफ स्नो, बिकॉज ऑफ विंटर्स, बट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। ओके, तो अगेन सिमिली यहां पर यूज हुआ है। देन उसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे इमेजरी पूरे इस ब्यूटीफुल विविड इमेजरी यूज की गई है, विजुअल इमेजरी यूज की गई है इसमें, ठीक है। द पोएट वांट्स टू क्रिएट द मेंटल पिक्चर्स इन हिज रीडर्स माइंड्स। जैसे आप यहां पर कह सकते हैं globe shrunk and tight, globe, so you this word creates the picture of world, the picture of a globe, the picture of snowdrop in one's minds, तो visual imagery है। Then round the mouse's dull wintering heart, mouse, एक पिक्चर क्रिएट होती है आपके माइंड में माउस की, डल विंटरिंग हार्ट, एक हार्ट की पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होती है। सो विविड इमेजरी में यूज की गई है। देन वीजल एंड क्रो, अगेन द पिक्चर ऑफ वीजल एंड क्रो कम इन योर माइंड्स, किस तरह से, एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, ऐसा लगता है कि जैसे पीतल के बने हुए हैं, पीतल के स्टैच्यूज हों। सो अगेन देयर इज इमेजरी, एक विविड पिक्चर, एक विजुअल जो आप क्रिएट करता है यहाँ पर पोएट आपके माइंड में। तो ये आप विजुअल्स देख सकते हैं, ब्रास का मेटल आप देख सकते हैं, वीजल एंड क्रो आप देख सकते हैं कि जैसे ब्रास के बने हुए हों, ठीक है। तो इमेजरी होती ही यही है कि जब पोएट जो है वो आपके 5 सेंसेस को अपील करता है, एनी वन ऑफ द 5 सेंसेस। Okay, then move through an outer darkness. So the picture of night's darkness is also created in your minds. यहाँ पर भी imagery है. Then again, with the other deaths, she too pursues her ends, brutal as the stars of this month. So the shining stars, again a visual imagery. आपके पास एक शाइनिंग स्टार्स के विजुअल्स आपके माइंड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी इमेजरी है, विजुअल इमेजरी को क्रिएट किया गया है। हर पेल हेड हैवी एज मेटल, ओके, पेल हेड, आपका पेल हेड हैवी एज मेटल, हैवी मेटल की पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होती है। ओके, यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं कि विजुअल इमेजरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसने यूज़ की है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सिंबलिज्म। तो सिंबलिज्म यहां यूज हुआ है, स्नोड्रॉप जो है इस फ्लावर को, दिस स्नोड्रॉप इट सिंबलाइजेस एंड्योरेंस, सर्वाइवल इन द हार्श विंटर्स।
इट इज अ सिंबल ऑफ एंड्योरेंस, आप ये कह सकते हैं. स्नोड्रॉप हैज बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ एंड्योरेंस, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन. ठीक है, टू कीप गोइंग. ओके, एंड देन सिंबल ऑफ रेजिलियंस आप इसको कह सकते हैं. ठीक है, विच इज एबिलिटी टू बलूम एंड सर्वाइव इन एडवर्सिटी, ये कह सकते हैं आप. तो कोई भी चीज इसको रोक नहीं पाती है क्या नाम है ग्रो होने से, ब्लूम होने से. तो सिंबलिज्म इसमें यूज हुआ है. देन मूविंग टू नेक्स्ट वन, अगर हम यहां पर बात करें personification, तो personification यूज हुआ है. personification means जब human qualities या the qualities of living beings are attributed to the non-living objects or ideas, जब non-living चीज को या किसी आइडिया को ऐसे डिस्क्राइब किया जाए जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जैसे कि लिविंग बींग्स है, तो दैट इज कॉल्ड personification. यहां पर she too pursues, स्नोड्रॉप के लिए she यूज हुआ एज इफ शी इज अ लेडी. ठीक है, एज इफ शी इज अ वुमन, एज इफ शी इज अ वॉरियर. ठीक है, जैसे स्नोड्रॉप एक वॉरियर है. ठीक है, शी टू परसीव्स हर एंड, कौन अपने एंड्स गोल को परसीव करता है? अ लिविंग बीइंग, अ ह्यूमन बीइंग. तो यहां पर स्नोड्रॉप को डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि वो क्या है, जैसे कि वो लिविंग बीइंग है. सो स्नोड्रॉप हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर. ठीक है, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. यहां पर भी आप कह सकते हैं हर पेल हैड हैवी एज मेडल. ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियर शी टू परस्यूज हर एंड्स. यहां पर आप कह सकते हो कि इतना भी आप कह सकते हो कि पर्सोनिफिकेशन यहां पर यूज हुआ है. देन द नेक्स्ट वन इज, अगर हम साउंड्स की बात करेंगे थोड़ा सा, एलिट्रेशन इसमें यूज हुई है. एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नेबरिंग वर्ड्स. ठीक है, मैंने इसको इस पर अलहदा वीडियो भी बनाई है. ठीक है, तो एलिट्रेशन की बात अगर हम कहें तो एलिट्रेशन यहां पर आप देख सकते हैं कि यूज हुआ है. इट इज व्हाट, हर पेल हैड हैवी. ठीक है, यहां पर आप कह सकते हैं हैड हैवी. ठीक है, सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो यूज हुई हैं इन दो वर्ड्स में. तो एलिट्रेशन का क्या नाम है, यूज यहां पर हुआ है, एलिट्रेशन. देन एजोनेंस, अनदर फिगर ऑफ एक साउंड जो है, फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. एजोनेंस इज व्हाट, सेम वॉवल साउंड्स जो होती हैं. इट कैन बी एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड्स, बिगिनिंग और एंड ऑफ द वर्ड्स. और इसकी डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं. आप कह सकते हैं चाहे एट द स्टार्ट ऑफ, ये कह सकते हैं कि सिमिलर कॉन्सोनेंट्स बट डिफरेंट वाउल्स भी हो सकते हैं, वाउल साउंड्स. डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स बट सिमिलर वाउल साउंड्स भी हो सकते हैं. जैसे अगर हम डिस्कस करें यहां पर राउंड द माउस, तो यहां पर एक सिमिलर साउंड यूज हुई है. यहां पर ओ यू यूज हुआ, ये सेम साउंड देता है. ओ, ओके, ओ, राउंड, ओ, माउस, ओ. ओके, ओ साउंड, सेम साउंड यहां पर है. स्टार्ट के वर्ड्स के स्टार्ट में डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं बट वाउल साउंड्स सिमिलर हैं. तो दिस इज व्हाट, एजोनेंस. एक एजोनेंस की एक एग्जांपल यहां पर आपको मिल सकती है. इसी तरह से यहां पर अभी आप देख सकते हो क्रो एज इफ मोल्डेड. तो यहां पर कौन सी साउंड है? इट्स ओ, क्रो, ओ, मोल्डेड, ओ. यहां पर भी ओ यू पर ओ साउंड निकलती है, क्रो ओ पर ओ साउंड निकलती है, ओ. ठीक है, इट्स ओ, ओ. सो द सेम सिमिलर यहां पर भी वाउल साउंड यूज हुई है. अनदर एग्जांपल ऑफ एजोनेंस इज हियर यहां पर. देन राइट माइंड्स, यहां जो आई यूज हुआ है राइट में, और यहां पर जो एम के बाद आई यूज हुआ है, राइट आई, माइंड्स आई. तो इन जगहों पर आई साउंड यूज हुई है. ठीक है, आई. सो दिस इज व्हाट अनदर एग्जांपल ऑफ एजोनेंस. ओके, एजोनेंस. देन मूविंग टू द नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हैं the other. खैर यहां पर तो आप कह नहीं सकते हैं बिकॉज दिस इज द, आप यहां पर दी प्रोनाउंस करोगे बिकॉज अदर वर्ड्स वाउल साउंड से शुरू होता है. यहां पर हम नहीं कह सकते हैं. सो यहां पर आप आए, she too pursues, she too pursues, तो यहां पर आप कह सकते हैं सिमिलर साउंड्स हैं, ऊ साउंड,
सिमिलर साउंड्स हैं, तो आप वॉल साउंड्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि एजोनेंस यहाँ पर यूज हुआ है. ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, हर पेल हेड हैवी एज मेटल. ओके, तो यहाँ पर सो ये कुछ एग्जांपल्स थी एजोनेंस की. यहाँ पर भी एक एजोनेंस आप यूज कर सकते हैं. मूव थ्रू, ऊ ऊ, ठीक है, ऊ ऊ यहाँ पर यूज हुई है, साउंड यूज हुई है. मूव थ्रू, सेम वॉल साउंड्स यूज हुई हैं एट द मिडल ऑफ दीज वर्ड्स. तो आप कह सकते हैं कि अगेन ये यहाँ पर एजोनेंस जो है वो यूज हुआ है. सो इट वाज एजोनेंस. एंड देन उसके बाद अगर हम कहेंगे हम वर्स की बात करेंगे, राइम स्कीम तो इसमें कोई यूज नहीं हुई है. सो वी कैन से दिस इज व्हाट फ्री वर्स, रिटन इन फ्री वर्स, क्योंकि यहाँ कोई राइम स्कीम नहीं है. टाइट हार्ट, कोई रिजेम्बलेंस नहीं है साउंड में. ब्रास, डार्कनेस, माइंड्स, कोई रिजेम्बलेंस नहीं है साउंड्स में. सो आप ये कह सकते हैं कि फ्री वर्स इनमें यूज हुआ है. सो इट वाज ऑल अबाउट द पोएम स्नोड्रॉप. आई होप यू लाइक द वीडियो. Thank you very much.